So now we will discuss the relevance of going concern assumption. Okay, how it is important. It is helpful in making the डिस्टिंक्शन बिटवीन द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ये क्या है इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है, मतलब एज यू नो डैट देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. आई हैव टोल्ड यू, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट दिस इन द बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स डैट देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. एज यू नो डैट द कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रिलेटेड टू द नॉन रेकरिंग नेचर. ओके, मीन that there is a difference, that capital expenditure is related to those expenditures which are related to non recurring nature. ठीक है, which are related to non recurring nature, जो क्या है रेगुलर बेसिस के अंदर नहीं होते हैं. ठीक है, मतलब जो कि है नॉन रेगुलर है, विच आर नॉन रेगुलर. ठीक है, एंड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच आर of recurring nature. ठीक है, if you haven't seen the basic accounting term, please see those videos. You will be more able to understand about these concept. Okay, capital expenditure का क्या example हो सकता है? that there is a purchase of machinery. ठीक है, it is related to capital expenditure because it will give the benefit to the firm for the long time. If there is a purchase of machinery, that machinery will give the benefit to the firm for the long term, and the expenses which are made on purchasing the machinery will not be done in a regular nature. मतलब क्या है, देखो as you know that there is a lot of cost of acquiring the machinery. ठीक है, अगर कोई बिजनेसमैन परचेज कर रहा है that there is a need of 10 to 15 lakh, सो वो क्या है रेगुलर नेचर के अंदर क्या है परचेज नहीं करेगा मशीनरीज को. सो इट विल बी रिलेटेड टू कैपिटल एक्सपेंडिचर. एंड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स द एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू रेकरिंग नेचर, मतलब जो रेगुलर नेचर के अंदर किए जाते हैं डेली बेसिस के ऊपर. ठीक है, सपोज देयर इज ए पेमेंट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर, salary paid to the workers, wages paid, all these administrative expenses, all these are related to recurring nature. Okay, so it will be kept under the category of revenue expenditure. Next is in this the classification of assets and liabilities into current and non current assets or the liabilities is made. अब देखो क्या है, इनको क्लासीफाई किया जाता है assets and liabilities को into current and non current. Current means which will be converted into cash within 1 year. Okay, and non current means which will not be converted into cash within 1 year, means it will be giving the benefit for the long term, and these will the cash will not be realized from these assets and liabilities within 1 year. Okay, depreciation is charged on fixed assets, and the fixed assets appear in the balance sheet at a book value. This is a basic term related to fixed assets. What is depreciation? डेप्रिशिएशन मीन्स देर इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स बाय द यूज ऑफ दो. जैसे जैसे आप असेट्स को यूज़ करोगे देर विल बी डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ दोज असेट्स, एंड दैट इज नोन एज अ डेप्रिशिएशन. ओके, एंड द फिक्स असेट्स आर अपियरिंग इन द बैलेंस शीट इन एट द बुक वैल्यू. ठीक है, वो क्या है बुक वैल्यू के ऊपर ही अपियर होंगी विदाउट हैविंग रेफरेंस टू देयर मार्केट वैल्यू. इट विल नॉट बी शोन एट द मार्केट वैल्यू. द फिक्स असेट्स विल बी शोन इन द बैलेंस शीट एट द बुक वैल्यू. Okay, these all the terms I have explained in basic accounting terms. Okay, that's why I am saying again and again, if you haven't seen that videos, please see that videos, then only you will be able to understand all these concepts. Okay, next we will discuss about the consistency assumption. According to this assumption, accounting practices once selected and adopted should be applied consistently year after year. वो क्या कह रहे हैं कि जो principles, assumptions, practices को adopt कर लिया गया है, that policy should be adopted for the year after year. There should be not that frequent changes. Okay, उनके अंदर changes नहीं किए जा रहे हैं. This will ensure a meaningful study of the performance of the business for a number of years. वो कहता है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो पॉलिसीज आप अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो बिजनेसमैन अडॉप्ट कर रहे हैं, दैट शुड बी कंटिन्यूसली यूज्ड ईयर आफ्टर ईयर. देयर शुड बी नो changes in that. It is not saying that there should not be any type of change. ठीक है, ये क्या है, consistency assumption does not mean that particular practices once adopted cannot be changed. वो ऐसा नहीं कह रहा है कि एक बार अडॉप्ट कर लिया आप चेंज ही नहीं कर सकते.
ठीक है। द ओनली रिक्वायरमेंट इज डैट व्हेन ए चेंज इज डिजायरेबल, जब क्या है उस चेंज की ज़रूरत है, डिजायरेबल है, ठीक है, देयर इज अ नीड ऑफ चेंज, देन ओनली दैट चेंजेस शुड बी मेड, विदाउट एनी नीड देयर शुड बी नो चेंजेस इन द पॉलिसीज अडॉप्टेड, ओके। And if there is any change, it should be fully disclosed in the financial statement along with its effect on the income statement and the balance sheet। अब वो कहते हैं कंसिस्टेंसी assumption, देखो क्या कह रही है कि जो भी पॉलिसीज अडॉप्टेड की गई है दैट शुड नॉट बी चेंज्ड ईयर आफ्टर ईयर। उनको क्या है, ऐसे नहीं है कि आपने फर्स्ट ईयर ये कोई पॉलिसी अडॉप्ट की, या फिर जैसे डेप्रिशिएशन के अंदर आप कोई मेथड यूज़ कर रहे हो, जैसे उसके अंदर मेथड्स हैं, फर्स्ट ईयर आप फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से कर रहे हो, सेकेंड ईयर आप क्या कर रहे हो, रिटर्न ऑन वैल्यू से करो, थर्ड ईयर फिर से आपने फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट कर दिया, दिस विल नॉट गिव द एक्चुअल रिजल्ट्स ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जो आपने क्या है मेथड्स यूज़ किए हैं दैट शुड बी कंटिन्यूसली यूज्ड। अब ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि दैट देयर विल बी नो चेंज, ठीक है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो आपने चेंज कर लिया आप उसके अंदर चेंज ही नहीं कर सकते। यू कैन चेंज व्हेन द चेंजेस आर डिजायरेबल, जब उनकी ज़रूरत है, नीड है, यू कैन मेक द चेंजेस, बट द चेंजेस शुड बी फुली डिस्क्लोज, मतलब उनको फुली बताना है कि डेट व्हाट आर द चेंजेस, व्हाट वाज द रीजन फॉर मेकिंग द चेंजेस, ओके, along with the effect that what will be the effect on the income statement and the balance sheet of that changes। अगर आपने कोई चेंज किया है then the businessman has to tell full reason of making the changes, what will be the effect of those changes in the financial statement and the balance sheet, okay। So what is the relevance of this assumption? It helps the management in making decision making by utilizing the comparable financial information। ये क्या है, एक comparative study provide करवाती है which will be helpful in taking the decisions for the welfare of the business, okay। Any accounting practices may be changed if the law or the accounting standard requires। तो वो क्या कह रहा है, देखो वापस वही बात कह रहा है कि कंसिस्टेंसी assumption ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, देर आर फ्लेक्सिबिलिटीज बट द चेंजेस शुड बी मेड एट दैट टाइम ओनली व्हेन देर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ दैट चेंजेस। अगर रिक्वायरमेंट है तभी चेंज करना चाहिए, तभी वो ज़्यादा क्या है मीनिंगफुल और ट्रांसपेरेंट होगी, तभी वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। इफ़ देर इज़ नो नीड ऑफ मेकिंग द चेंजेस दैट विल प्रोवाइड द लॉसेज, वी कैन से दैट विल बी टेक द बिजनेस बैक, ओके। सो द चेंजेस शुड बी मेड एट दैट टाइम ओनली व्हेन देर इज ए नीड ऑफ मेकिंग चेंजेस। नेक्स्ट इज एक्रूअल अजम्पशन। देखो ये अजम्पशन क्या कहती है, वी आर डिस्कसिंग द अजम्पशंस ऑफ द अकाउंटिंग टर्म्स, ओके। अकाउंटिंग के अंदर जो भी अजम्पशंस है वो हम यूज़ कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड इज फर्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट द गोइंग कंसर्न, सेकंड कंसिस्टेंसी एंड थर्ड इज एक्रूअल अजम्पशन। ये अजम्पशन क्या कहती है, द एक्रूअल कंसेप्ट अप्लाइज इक्वली टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि जो ये एक्रूअल कंसेप्ट है इट विल बी एप्लीकेबल बोथ टू द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। रेवेन्यू क्या होता है, एज ए इनकम होता है, और एक्सपेंसेस यू नो दैट इट इज ए एक्सपेंडिचर, ओके। एज पर दिस अजम्पशन ऑल रेवेन्यूज एंड कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे आर अर्नड और इनकर्ड, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग सभी रेवेन्यूज एंड कॉस्ट को रिकॉग्नाइज किया जाता है जब वो अर्न कर लिए जाते हैं या फिर वो इनकर हो जाते हैं, ठीक है। सो we will discuss this with an example, okay। It is immaterial whether the cash is received or paid at the time of transaction or later, ठीक है। एक एग्जांपल है, इफ़ ए क्रेडिट सेल, क्रेडिट फॉर 2 months, मतलब क्या है, क्रेडिट सेल की गई है, मतलब क्या है, एक उधार सेल की गई है, और वो उधार कितनी टाइम पीरियड के लिए दिया गया है, फॉर द 2 months, फॉर ₹15,000 इज मेड ऑन 15th Feb 2015। अब देखो क्रेडिट सेल कब की गई है, ऑन 15 Feb 2015, देन द रेवेन्यू अर्न टू बी रिकॉग्नाइज्ड on 15th Feb 2015, नोट ऑन द डेट ऑफ कैश रिलाइज्ड। अब देखो ये क्या कह रहा है, एक्रूअल कंसेप्ट, देखो वापस से वही बात, हम वापस बैक जाते हैं अपने उसके ऊपर, कंसेप्ट के ऊपर। क्या क्या कह रहा है ये, ऑल द रेवेन्यूज एंड कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे अर्न और इनकर, जब भी वो अर्न हो जाएंगे या तो वो तभी किस भी, इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू कैश पेमेंट और कैश
sales. Okay, it means we are receiving the cash on the spot or paying the cash on the spot. वो तो तभी की तभी earn होगी. And if these are incurred, if there is credit sale also, then also when the sale is made it will be recorded on that time only. इसी तरीके से देखो यही एग्जांपल है कि यहाँ पे क्रेडिट सेल थी जो कि है it was made on 15th Feb and the person said that he will pay the amount after 2 months. मतलब वो क्या है, अब देखो 15 Feb के मार्च अप्रैल means he will be paying the amount on 15 April. Okay, there was a credit for 2 months, but the sales or the revenue from the sale will be recorded on the 15th Feb only. ये क्या है, जो हमारा एक्रूअल कंसेप्ट है वो यही कह रहा है कि जब भी वो इनकर हो जाएंगे, चाहे वो एक्सपेंसेस है चाहे वो रेवेन्यूज हैं, दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. ठीक है, एट द टाइम ऑफ व्हेन द कैश विल बी रियलाइज्ड इट विल नॉट रिकॉर्डेड एट दैट टाइम, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स व्हेन दे विल इनकर, जब वो इनकर हो जाएंगे और जब वो अर्न हो जाएंगे. ठीक है, इन केस ऑफ एक्सपेंसेस इफ एट द एंड ऑफ द ईयर द 2 month सैलरी इज ड्यू बट नॉट पेड. अब ये क्या है कि जब आपका मान लो साल एंड हो रहा है 31 मार्च को, ठीक है, एंड देर इज़ ए आउटस्टैंडिंग सैलरी, वी कैन से दिस दैट देर इज़ ए ड्यू सैलरी, मतलब 2 महीनों की सैलरी पे नहीं की गई है, देन द एक्सपेंसेज ऑफ सैलरी विल बी रिकॉर्डेड इन द करंट ईयर इन विच सैलरी इज ड्यू, नॉट इन द नेक्स्ट ईयर इन विच इट विल बी पेड. अब देखो ये देखो वही बात उसी से है कि रेवेन्यूज़ को भी तभी ही लिखा जाएगा जब वो इनकर हो जाते हैं. ठीक है, आपने क्रेडिट सेल की, ठीक है, आप तभी रिकॉर्ड कर लोगे डेट देर इज़ ए रेवेन्यू ऑफ 15,000. ठीक है, ये तब नहीं रिकॉर्ड करोगे कि जब आप कैश रियलाइज होगा. उसी तरीके से एक्सपेंसेस, यहाँ पे एग्जांपल लिया है हमने कि डेट देर इज़ ए 2 month सैलरी डेट इज़ ड्यू, मतलब अभी तक क्या है 2 महीनों की सैलरी पे नहीं की गई है. इट मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. ओके, बट इट विल बी रिकॉर्डेड इन द मंथ इन विच इट इज़ ड्यू, मतलब उसी इन द ईयर इन विच इट इज़ ड्यू, ये उसी ईयर के अंदर ही लिखे जाएंगे जिस ईयर के अंदर ये आउटस्टैंडिंग है. ठीक है, ये उस ईयर के अंदर नहीं लिखे जाएंगे जिस ईयर के अंदर क्या है ये पे किए जाएंगे. सपोज करो कि देर इज़ ए आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ फेब एंड मार्च. ठीक है, वी आर क्लोजिंग द अकाउंटिंग पीरियड ऑन द 31 मार्च एंड 2 महीनों की वो जो सैलरी है डेट इज़ पेड इन अप्रैल. ठीक है, इन द नेक्स्ट ईयर इट इज़ पेड, इट विल बी रिटर्न इन द लास्ट ईयर ओनली, इट विल नॉट बी रिटर्न इन द नेक्स्ट ईयर. ठीक है, ये दोनों के ऊपर ही कंसेप्ट लागू होगा, चाहे वो रेवेन्यूज़ है और चाहे वो क्या है एक्सपेंसेस है. So what is the relevance of this concept, or we can say assumption? Earning of a revenue and consumption of a resource can be accurately matched to a particular account period. अब देखो इससे क्या है, accurately हमें उस टाइम पीरियड के अंदर क्या है पता चल जाएगा कि उस टाइम पीरियड मतलब उस पर्टिकुलर ईयर के एक्सपेंसेस कितने और रेवेन्यूज़ कितने हैं. ठीक है, ये एक अजम्पशन हम इसलिए लेके चलते हैं ताकि हम क्या है एक्यूरेसी मेंटेन कर सकें. ठीक है, बिजनेसमैन के जो अकाउंट्स हैं वो एक्यूरेट रहें. सपोज जैसे अब उन्होंने ये एग्जांपल लिया था पिछला डेट वाज रिलेटेड टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, अगर वो क्या करें कि वो मतलब नेक्स्ट व्हेन द कैश इज रियलाइज्ड, अगर वो उस टाइम को रिकॉर्ड करे देन देयर विल बी मिसमैच, क्योंकि वो क्या है लास्ट ईयर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगी. हो सकता है करंट ईयर के अंदर उसकी इतनी पेमेंट्स ना हो या फिर इतनी ज़्यादा कैश सेल ना हो. ठीक है, तो वो क्या है देयर विल बी नो एक्यूरेसी इन द अकाउंटिंग दैट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेसमैन. ठीक है, टू मेंटेन द एक्यूरेसी इन द अकाउंटिंग दैट इज़ प्रिपेयर्ड इन द अकाउंट्स दैट देयर इज़ ए अजम्पशन ऑफ एक्रूअल कंसेप्ट. ठीक है, एक्रूअल जो अजम्पशन है वो इसी वजह से बनाई गई हैं सो दैट द एक्यूरेसी कैन बी मेंटेन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ओके, so students, today we have discussed all the 3 assumptions of accountancy. Okay, revise this topic from the book. If you face any problem you are free to ask. Stay home, stay safe. Thank you.